السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ بی جے پی مردم شماری کے ساتھ طبقاتی سروے کرائے، ریونت ریڈی کا چیلنج۔ ریاست میں سروے کرانے کی ہمت نہیں، 100% شفاف سروے کرایا گیا۔ بی سی طبقات کے لیڈرز کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا اجلاس۔ سری سیلم لیفٹ بینک کینال کی سرنگ میں حادثہ، 8 مزدوروں کی ہلاکت کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ کا مسلسل رابطہ، وزیر آبپاشی کی قیادت میں بچاؤ کام جاری۔ ریاست میں جہاں 100% قرض معاف کیا ہے، کانگریس وہیں مقابلہ کرے، جوابی چیلنج۔ تلنگانہ کے فیکس آمدنی برقرار رکھنے میں ناکام، کے ٹی آر کی پریس کانفرنس۔ اور خاندانی جھگڑوں اور مینوشی سے تنگ آ کر نوجوان نے دن دہاڑے لبے سڑک باپ کا کیا قتل۔ کشائی گوڑا پولیس اسٹیشن حدود میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک میں کسی بھی ریاست نے طبقاتی سروے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ پرجا بھون میں قائدین کے ساتھ طبقاتی سروے سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ میں راہل گاندھی کے وعدے کے مطابق ہر ایک کی تعاون سے طبقاتی سروے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے جامع خاندانی سروے میں غلطیاں تھیں، اس لیے BRS حکومت نے اسے منظر عام پر نہیں لایا۔
उन्होंने कहा कि इस सर्वे की तफसीलात को सिर्फ इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमने कांग्रेस हुकूमत ने पूरी संजीदगी के साथ तबकाती सर्वे किया है। कानूनी तौर पर मुश्किलात खड़ी न हो, इसलिए डिपार्टमेंट के तहत तबकाती सर्वे मुनक्किद किया गया। गलतियां होने की बात करने वाले ये बताएं कि किस ब्लॉक में और कहां गलती हुई है, इसका खुलासा करें। मुल्क की आज़ादी के बाद किसी ने भी तबकाती सर्वे नहीं किया है। इस देरीना मुतालबे को कांग्रेस ने पूरा किया है। बीजेपी में एक दो आलाजात वालों से समाजी तबके को नुकसान हो रहा है, वही लोग तबकाती सर्वे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का यह भी दावा है कि तबकाती सर्वे से राहुल गांधी के दौरे और शोर बेदारी से वजीर आजम मोदी को अपने ओहदे से महरूम होने का अंदेशा है और राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे। उनका यह भी कहना था कि बी संजय भी ओहदे से महरूम हो जाएंगे। उनका कहना था कि बीजेपी के लीडर्स अपने ओहदों को बचाने के लिए तबकाती सर्वे की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि कौमी मरदमशुमारी के साथ तबकाती सर्वे को भी शामिल करें, हिसाब किताब साफ हो जाएगा। पिछड़े तबकात के लिए तबकाती सर्वे की रिपोर्ट मुकद्दस किताब की तरह है। तबकाती सर्वे पर उन्होंने मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बी संजय के अलावा बीआरएस क़यादत को भी मुबाहिस का चैलेंज दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2023 में दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात में ओबीसी के तहत मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बीजेपी कायदीन को गुजरात में मुस्लिम रिजर्वेशन नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वो तेलंगाना में इसकी मुखालिफत पर उतर आए हैं। उन्होंने तमाम पसमानदा तबकात से कहा कि वो मुखालिफ बीसी, बीजेपी और बीआरएस के असली चेहरों को समझ लें। श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल की सुरंग का छत गिर गया। इतलात के मुताबिक जिसमें 8 मजदूर दबकर हलाक हो गए हैं। दिगर फंसे मजदूरों को निकालने बड़े पैमाने पर बचाव टीमें सरगर्म हो गई हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जिले नागर कर्नूल के डोमलपेंटा में वाक़ सुरंग का छत मुनहदिम हो गया। जिले कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट पुलिस और दीगर ओहदेदार राहतकारी के कामों पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा है कि वो ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करें। मुतवफ़ियों और ज़ख्मियों के अरकान ख़ानदान को उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनकी हर मुमकिना मदद करेगी। SDRF और NDRF की टीमें भी जाए हादसे पर पहुँच गई हैं। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ज़िले नागर कर्नूल के करीब दोमलापेटा में SLBC टनल में हुए हादसे के बाद वज़ीर आला की हिदायत के बाद वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर जोपली कृष्ण राव, DIGI और आबपाशी ओहदेदारों के साथ रवाना हो गए। इस हादसे में जख्मी होने वालों को फौरी इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतासर अफराद खानदान से मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि अभी टनल में 8 अफराद फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि NDRF टीमें भी पहुंच चुकी हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और वक्फे की रिपोर्ट से वाकिफ करवाएं। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इंकशाफ किया है कि साल 2014 में तेलंगाना मुल्क भर में फीकस आमदनी के मामले में 10वें मुकाम पर था। 2023 में ये पहले मुकाम पर पहुंचा, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत इसे बरकरार नहीं रख पाई। रेवंत रेड्डी की तरफ से इंद्रम्बाह मकानात को लेकर किए गए रिमार्क पर KTR ने कहा कि हम भी ये चैलेंज करते हैं कि जहां पर 100% किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, वहां से इंतखाब लड़ें। KTR ने रेवंत रेड्डी के रियासत के मुनाफे के दावे को मज़हक का कैस करार दिया। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी 6,500 करोड़ रुपए की माहाना आमदनी का झूठा दावा कर रहे हैं। KTR ने यह भी कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद कोई भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। 1000 राशन कार्ड में कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि नायब वजीर आला बट्टी विक्रमार्का की जानिब से जारी की गई है। మన స్థానం ఏంటిది GSDPలో మొత్తం ఓవరాల్ సైజ్ అంటే ఈ నివేదికలో ఏం చెప్పారంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాకు అప్పజెప్పిపోయినాడు ఆనాడు ఈ రాష్ట్రం యొక్క GSDP గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ 5 లక్షల కోట్లు. కానీ ఈరోజు బట్టి విక్రమార్క గారు విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక ప్రకారం ఈ రాష్ట్రం యొక్క GSDP 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారు 5 లక్షల కోట్ల నుంచి 15 లక్షల కోట్లకు పెంచారు అని ఈ నివేదికనే రేవంత్ రెడ్డి చెంప మీద చెల్లుమని కొడుతూ నివేదిక ఇచ్చింది. ఇది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. ఇది ఇలా చూడండి మీరు, మనకంటే పైన ఎవరున్నారంటే మనకంటే చాలా భూభాగంలో జనాభాలో పెద్దదైన మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, కర్ణాటక,
పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్ ఈ 6 తర్వాత తెలంగాణ. అంటే గుజరాత్ను కూడా తలదన్ని ఇవాళ తెలంగాణ 10 ఏళ్లలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 5 లక్షల కోట్ల నుంచి 15 లక్షల కోట్లకు జిఎస్డిపి పెరిగింది అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నివేదిక చెప్పింది అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు సిగ్గు తెచ్చుకోండి అని చెప్తా ఉన్నా. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तारीख को बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश करने से तारीख तब्दील नहीं होगी. मीडिया से बात करते हुए हक़ाइक़ हक़ की तरह होता है. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हक़ाइक़ के खिलाफ बात कर रहे हैं. अवाम रेवंत रेड्डी से बदजन हो चुके हैं. नारायणपेट के जलसेआम में भी केसीआर के खिलाफ हमेशा की तरह तनकीदें की हैं. केसीआर की 10 साला हुकूमत पर तनकीद करने से क्या फ़ायदा. केसीआर ने जो कमांड कंट्रोल तामीर किया वहां बैठकर हुक्मरानी कर रहे हैं. वज़ीर आला बनने के मौके का रेवंत रेड्डी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की कठपुतली बन चुके हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की कठपुतली बने हुए हैं. मीडिया से बात करते हुए कविता ने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू से मोहब्बत है या फिर तेलंगाना के किसानों से. आंध्रा तेलंगाना का पानी ले रहा है और रेवंत रेड्डी खामोश हैं. उनका यह भी कहना था कि प्रजा भवन में चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद से तेलंगाना का पानी लिया जा रहा है और रेवंत रेड्डी खामोश हैं. आंध्रा कैडर के अंजनी कुमार को फौरन रिलीफ करने के लिए महकमे वजीर दाखिला ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है. एपी कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को तेलंगाना हुकूमत को फौरन रिलीफ करने की मरकजी हुकूमत ने हिदायत दी थी. अंजनी कुमार, अभिलाष बस्ता, अभिषेक मोहंती को एपी कैडर में रिपोर्ट करने की वजारत दाखिला ने हिदायत दी है. सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी से वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स टीम के हमरा मुख्तलिफ वक्फ इदारों का मुआयना किया. वक्फ इदारों की जायदादों पर जबरन कब्ज़ों की इत्तला पर यह मुआयना किया गया. सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि जामे मस्जिद अतापुर, दरगाह हज़रत गंदम शाह बाबा और मस्जिद गंदम गोड़ा जामे मस्जिद सर्वे नंबर 21 नेक नामपुरा, दरगाह हज़रत असदुल्लाह शाह नेक नामपुरा, दरगाह रूहुल्लाह हुसैनी, कब्रस्तान अब्दुर्रहमान खान नेक नामपुरा और कब्रस्तान सर्वे नंबर 491 नरसंगी विलेज का दौरा करते हुए जबरन कब्ज़ों की तफसीलात हासिल की गईं. सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने वक्फ अहदेदारों को हिदायत दी कि वक्फ आराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और जबरन कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि मौक़ूफ़ा अराजियात पर की जाने वाली गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा के ज़रिए खाली करवाया जाएगा. उन्होंने कब्ज़ेजात के पसे पर्दा अफराद का भी पर्दाफाश करने की बात की. दौरे में टास्क फोर्स, वक्फ बोर्ड टीम, इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे. माह रमज़ान मुबारक के दौरान तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा के दिन मुनक्किद होने वाले जलसे यौमुल कुरान के लिए हुकूमत ने 2 जुमे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मख्तस किए हैं. स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद के जारी करदा हुक्मनामे GORT 8 के मुताबिक पहला जुमा जो 7 मार्च को करार पा रहा है और आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा जो 28 मार्च को करार पाएगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मख्तस किए गए. इन दोनों जलसे यौमुल कुरान की निगरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होंगे. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में ख़वातीन को तरबियती प्रोग्राम की तकमील के बाद रोज़गार से मरबूत करने के लिए मशीनों और दीगर सामान की तक़सीम जारी है. हफ्ते को अफजल नगर कम्यूनिटी हॉल में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अहल और तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन में सिलाई मशीनें, ओवन, वॉशिंग मशीनें, रेफ्रिजरेटर्स तकसीम किए. ऊंची उड़ान प्रोग्राम के इश्तराक से यह तकसीम अमल में आई. 26 इंडस्ट्रियल मशीनें, 26 पीको मशीनें, 4 इलेक्ट्रॉनिक सीविंग मशीन, 2 माइक्रोवेव कन्वेशन, 1 वॉशिंग मशीन, 2 टी स्टॉल के लिए डब्बे, 3 पार्लर सेट और 1 ज्वेलरी कटिंग मशीन, 1 यूज एंड थ्रो कप मशीन, तरकारी रखने के लिए 12 रैक काउंटर्स और 26 बॉक्स तकसीम किए गए. इस्तिफादा कुनिंदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया. मजलिस के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे.
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इब्नात फाउंडेशन के इश्तराक से 30 ता 60 दिन के लिए डाटा एनालिस्ट, वेब डेवलपमेंट और USIT रिक्रूटमेंट के कोर्सेस मुनक्किद किए गए। इन कोर्सेस की तकमील पर 31 उम्मीदवार बड़ी कंपनियों के लिए मुंतखब हुए हैं। 19 उम्मीदवार पहले ही कंपनियां ज्वाइन कर चुके हैं और मजीद तकर्रुरनामों का इंतजार कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में अकबरबाग कम्युनिटी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने खिताब में मुंतखब होने वाले नौजवानों और लड़कियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तरक्की की उड़ान काफ़ी ऊंची है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं और इसीलिए इस तरह के तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अहमद बलाला ने कहा कि जो उम्मीदवार और तलबा मुंतखब नहीं हो पाए हैं उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। नौजवानों को बाहुनर, बाइख्तियार बनाने के लिए मजलिस की कोशिशें जारी रहेंगी। इस मौके पर मुंतखब उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स सैफुद्दीन शफी और अब्दुलसलाम शाहिद मौजूद थे। I have enrolled in the data analyst in the Ibnat Foundation program, and I'm deeply grateful to have part in this program, as it was super excited to take a part and enroll my name in the data analyst. Good package of job in the MNC, which is Google, and I'm satisfied. I have upgraded my skill. Surely I'll put in those all skills in my future endeavor. Thank you Ahmed Balala sir, and thank you Assaduddin Awaisi sir. Your time and support to this program, it was a great success. Thank you. दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और बलाला साहब का, जिसने ये प्रोग्राम रखा। जैसे हम जैसे यूथ के लिए जो टेक्निकल स्किल्स में बैक कर रहे हैं, जो वेरियस जो AI आ रहा है, जो नए नए स्किल्स आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग को एक फाउंडेशन दी, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हम जैसे स्टूडेंट्स के जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे दे, जो बाहर हम जाके कोर्सेज करें, यही कोर्स का कॉस्ट आपको वेब डेवलपमेंट का 15,000 20,000 है, वही हम आपको यहाँ इब्नात फाउंडेशन और अहमद बलाला साहब की जानिब से फ्री में दिया गया है। मैंने एनरोल किया था कुछ टाइम पहले। ये इब्नात फाउंडेशन के जो कोर्सेज हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं अहमद बलाला सर जो MLA है मलकपेट के, उनके तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ड्यूरिंग मेरे कोर्स के ही मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से गूगल में काम कर रही हूँ। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ये ग्रेट इनिशिएटिव है जो अहमद बलाला सर और जो इब्नात फाउंडेशन के सारे ट्रेनर्स हमें उनका टाइम दे रहे हैं, उनका सपोर्ट जो गाइडेंस हमें मिल रहा है उनकी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस चीज़ का पार्ट थी, एंड आई होप कि ये कंटिन्यू होते रहे ऐसे ही। हम जैसे जॉब सीकर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जज़ाकल्लाह खैर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याखुतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को रैन बाजार डिवीजन में CC रोड के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 दिनों में काम को मुकम्मल किया गया है। इस काम पर 10.5 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्का याखुतपुरा के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती कामों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जा रहा है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हल्के की 182 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,82,21,112 रुपये बताई गई है। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया। डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की 40वीं सालगिरह के 4 रोज़ा जश्न के दूसरे दिन सालार मिल्लत ऑडिटोरियम जफरगढ़ कंचन बाग में एक अज़ीमुश्शान कौमी मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मुशायरे को सुनने न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अजला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से उर्दू के शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कायद मजलिस, लेजिस्लेटिव पार्टी व मैनेजिंग डायरेक्टर डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के इस पहले अक़लियती कॉलेज को अपनी जुस्तजू और मेहनत से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस कॉलेज ने सरजमीन दक्कन में तालीमी इनकलाब लाने में मदद की। नामवर शोरा इकराम, नवाज देवबंदी,
संपत सोनी, महशर आफरीदी, नदीम फर्रुख, जहाज देवबंदी, मुमताज़ नसीम, अज़म शाकिरी, मोनिका सोनी के अलावा हैदराबाद की मुमताज़ शुअरा सलाहुद्दीन नैयर, सरदार सलीम, मोहम्मद अली वफ़ा, तैयब पाशा कादरी और अल्ताफ़ शहरियार ने कलाम सुनाया। हर शायर ने इस मुशायरे को यादगार बना दिया। निज़ामत नदीम फर्रुख ने की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से संगारेड्डी में ग्रेजुएशन एमएलसी के इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने के लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर सेहत दामोद राज नरसिम्हा और वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने शिरकत की। कांग्रेस के लीडर्स ने बीआरएस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी ने इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाना चाहते हैं। उन्होंने राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो बीआरएस पार्टी के बहकावे में न आए। खानदानी झगड़े और बाप की मैनौशी की वजह से बेटे ने दिन दहाड़े लबे सड़क बाप का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 25 साला साई कुमार साकिन लालापेट ने अपने 45 साला बाप आरेली मोगिली पर चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि साई कुमार अपने वालिद का बस में पीछा कर रहा था और जैसे ही मोगिली ECIL टर्मिनल के पास बस से उतरा, साई कुमार ने उस पर चाकू से पै दर पै वार किए। शदीद जख्मी हालत में साई कुमार को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया है। साई कुमार को तहवील में ले लिया गया है। महकमे आयुष ने जलपल्ली में वाक़ एक मशहूर अताउल्लाह आयुर्वेदिक यूनानी प्राइवेट लिमिटेड को आयुष ड्रग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुहरबंद कर दिया और इसके प्रोपराइटर डॉक्टर अताउल्लाह को हिदायत दी है कि वो अंदरून 15 यौम तहरीरी तौर पर वजाहत पेश करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग मैजिक रेमेडिस एक्ट 1954 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर्स पृथ्वीराज और अनुदीप ने बताया कि ये जो दवाएं बनाते और मरीजों को देते हैं वो लाइसेंस याफ्ता नहीं है। ड्रग कंट्रोल के कानून के मुताबिक दवाएं तैयार करने और मरीजों को दिए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। मिर्चल पुलिस स्टेशन हुदूद के पीरजादी गुड़ा में जुमा की रात हुए हादसे में 32 साला सरकारी मुलाजिम हलाक हो गया। महलूक की शनाख्त संदीप की हैसियत से की गई है, जो मिर्चल तहसीलदार दफ्तर का मुलाजिम बताया गया है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के नलगुंडा से मुबैना बर्ड फ्लू के बाइस 7,000 मुर्गियों के फौत होने की इत्तला है। बताया जाता है कि कोटापल्ली मंडल के चरुकापल्ली के एक फार्म में ये अमवात हुई हैं। मुकामी डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद भी इन अमवात को नहीं रोका जा सका। फौत हो चुकी मुर्गियों को JCB की मदद से इज्तिमाई तौर पर दफन किया गया। मुकामी किसान ने 3 लाख रुपए के नुकसान का इंकशाफ किया है। हैदराबाद लालागुड़ा की एक रेस्टोरेंट में बिरयानी का बिल पूछने पर एक शख्स ने कैशियर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुपरस्टार होटल में एक शख्स अक्सर ऐसे ही मुबैना तौर पर बिरयानी मामूल के तौर पर देने के लिए इसरार किया करता है और कई बार इसको रोका भी गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज इसने रकम पूछने पर लाठी के साथ हमला कर दिया। इस वाक़े का मंजर भी CCTV में कैद हुआ है। रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस से अपील की है कि उन्हें कारोबार करने से रोका जा रहा है और मुसलसल धमकियां भी दी जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस से कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। नवाही इलाके उपल मोंडा मार्केट के पास बलदी हुक्काम की तरफ से फुटपाथ और सड़कों पर कायम ढांचों को मुनहदिम कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मुतासिरीन का कहना था कि इस कार्रवाई से उनका रोजगार मुतासिर होगा। दूसरी तरफ बलदिया का कहना था कि ट्रैफिक में मुसलसल खलल को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने कैरम बोर्ड क्लब का पर्दाफाश करते हुए 28 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा क्रॉस रोड के पास गैर कानूनी तौर पर कैरम क्लब चलाया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर धावा करते हुए क्लब के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शफीउद्दीन के बशमूल 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 15,970 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए बहादुरपुरा पुलिस के हवाले किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बीजेपी मर्दमशुमारी के साथ तबकाती सर्वे कराए, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। रियासत में सर्वे कराने की हिम्मत नहीं, 100% शफाफ सर्वे किया गया। BC तबकात के लीडर्स के साथ वजीर आला का इजलास। श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल की सुरंग में हादसा, 8 मजदूरों की हलाकत का खदशा। वजीर आला का मुसलसल राब्ता, वजीर आब्बासी की क़यादत में बचाव काम जारी। रियासत में जहां 100% कर्ज मुआफ किया है, कांग्रेस वहीं मुकाबला करे। जवाबी चैलेंज, तेलंगाना की फीकस आमदनी बरकरार रखने में नाकाम। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और खानदानी झगड़ों और मैनौशी से तंग आकर नौजवान ने दिन दहाड़े लबे सड़क बाप का किया कत्ल। कशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में दिल दहला देने वाला वाकया। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।